Hi Nidhi, nice to Hi. see you again. Congratulations on converting JBIMS, your dream college, and I wanted to know how are you feeling being in this college since you dreamt about it? Okay. Honestly saying, it does not feel real. मतलब it has been a month since my college started, but अब तक मुझे digest नहीं हो रहा है कि I am in JBIMS क्योंकि every day is something new and every day you get to learn something. You know, your schedule is too hectic. You have long days, but at the end of the day, it's worth it. You have fun and when you are with like-minded people, मेरे classmates सब बहुत talented है. तो ऐसे अंदर से रहता है कि आई कैनॉट टेक रेस्ट और आई कैनॉट फॉल बिहाइंड क्योंकि इन इन लोगों के साथ मुझे सीखना है, इन लोगों से compete करना है और इनसे भी सीखना है। तो वो बहुत एक्साइटमेंट हमेशा रहता है मन में कि अच्छा अब से तो जर्नी स्टार्ट हुआ है। हमें लगता है कि Amazing. सीईटी से स्टार्ट हो गया या फिर एक बार जेबीआईएमएस में आ गए तो हो गया, बट दैट्स नॉट ट्रू। जब तुम जेबीआईएमएस में आते हो तब से तुम्हारा जर्नी स्टार्ट होता है। सो ओवरऑल बहुत Amazing. एक्साइटेड हूँ। There is one more thing to highlight. JBIMS खत्म होने के बाद वापस यही फीलिंग आएगा कि JBIMS खत्म हो गया, अब से वापस कुछ नया स्टार्ट होने वाला है. So be ready for that as well. And yeah, before joining JBIMS, you were in Simsri. So how did that happen? Simsri से आप JBIMS कैसे आए and when did you join Sydenham College? ओके सो सिमस्ट्री का मैंने 10 दिन इंडक्शन अटेंड किया था। ऑलमोस्ट 10 दिन अटेंड किया था और उनका स्केड्यूल सुबह 7 या 7:30 से रात में 10 साढ़े 10 बजे तक होता था। तो पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज या फिर प्रोजेक्ट्स और गेस्ट लेक्चर्स वगैरह होते थे। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद मुझे ईमेल आया कि जेबीआईएमएस में हो गया, मास्टर्स इन फाइनेंस में सिलेक्शन हो गया है। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो नेक्स्ट डे से मैंने अटेंड करना छोड़ दिया और बीच में 2-3 दिन का गैप था। उसके बाद वापस जेबीआईएमएस का इंडक्शन स्टार्ट हो गया। इसका भी स्केड्यूल सिमिलर ही था। पूरा दिन कॉलेज, घर आने के बाद अराउंड 11 यू वुड गेट एन ईमेल कि दीज आर द असाइनमेंट्स दैट यू हैव टू कंप्लीट बिफोर यू रिपोर्ट टुमारो। तो फिर रात में बैठ के रात भर वो पढ़ो और असाइनमेंट कंप्लीट करो। सो इट वाज वेरी हेक्टिक, बट एट द एंड ऑफ इट, एट द एंड ऑफ 15 days ऑफ इंडक्शन कंबाइंड, इट वाज ऑल वर्थ इट क्योंकि मैंने इतने सारे गेस्ट लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए और इतनी सारी एक्टिविटीज करी कि आई लर्नड अ लॉट इन दोज 15 days itself. तो इट वाज Yeah. वर्थ इट। So generally induction तो 5 days या 10 days का होता है in one particular college. So you got a chance to go in induction of two colleges. So that itself, it's very difficult to go through that phase. But yeah, you come out really strong and you are very confident about yourself after this. यस। So kudos to that, amazing. So before we go further into the interview, would you like to introduce yourself, how you were before getting into JBMS? What was your background? Are you an engineer, non-engineer? A bit about your background in undergrad. So I am from commerce background. My profile is 888. For my school life, I do not have a lot of extracurriculars or all those activities to show. When I transitioned to my college life, I started participating in a lot of activities. मतलब जो कुछ होता था, I make sure that I am a part of it. क्योंकि बहुत active रहना था और सेवे पे काम करना था, and also I wanted to learn a lot of skills. तो Yeah. फिर कॉलेज में मैंने अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम बीकॉम, मैंने सिम्बोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीकॉम किया है। आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2021। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, I was a part of drama society. I used to compete in business idea competitions. Then we used to organize a lot of events on the campus. All these experiences helped me improving my communication skills and all. So it was very great. You also Last mentioned that you were working while you were in college. So how did that happen? या सो क्या हुआ था कि पहले 2 साल कॉलेज के बहुत ही बिजी रहे मेरे। थर्ड ईयर जैसे स्टार्ट, मतलब थर्ड सेकेंड ईयर के एंड में कोविड स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद से तो बस कॉलेज ही चल रहा था, बस लेक्चर्स चल रहे थे और जो कुछ एक्टिविटीज और इवेंट्स वगैरह करते थे सब कुछ बंद हो गया। Right. सो मेरे हाथ में बहुत सारा फ्री टाइम था। आई वाज लाइक आई हैव टू डू समथिंग, सो आई कैजुअली स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर जॉब्स। तो मुझे एक जॉब दिखा, Amazon कस्टमर सर्विस, एंड दे डिड नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेजुएशन। तो फिर मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल प्रोसेस। सो फिर तब दिन में पूरा दिन, नॉट पूरा दिन,
सुबह लेक्चर्स होते थे 7 to 12 या 7:30 to 12 ऐसे कुछ। फिर दोपहर में मैं सोती थी। रात से मेरा वापस पूरा नाइट शिफ्ट चलता था फुल टाइम। ऐसे 3rd ईयर गुजारा है मेरे। दिन में कॉलेज, रात में काम, और फिर नाइस। बीच में शाम को जो भी असाइनमेंट्स आना हो। नाइस, सो यू आर हसलिंग बिटवीन कॉलेज लाइफ एंड योर जॉब। एंड क्यों आपने जॉब करने का सोचा? ओके, वन रीजन वाज कि आपके पास टाइम था, सो यू हैड टू यूटिलाइज इट इन अ बेटर वे, सो यू वेंट फॉर अ जॉब। दैट इज रियली अमेजिंग। बट डिडंट यू थिंक कि आपको एमबीए करना चाहिए तभी, एंड देन आप एमबीए का प्रिपरेशन के लिए आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में क्लियर था कि कुछ एक्सपीरियंस करके फिर एमबीए करना है, सो दैट आई हैव अ लेवरेज और थोड़ा बेटर आइडिया हो कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ताकि उस हिसाब से मैं आगे जाके डिसाइड करूँ कि मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, ऑपरेशंस करना है, सप्लाई चेन करना है, कुछ भी करना है। थोड़ा बेटर आइडिया हो कि कहाँ जाना है, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ जस्ट डायरेक्टली जंपिंग इनटू इट। नॉट दैट करेक्ट। एनीथिंग रॉन्ग विद इट, बट आई थॉट आई वुड बी मोर कंफर्टेबल दिस वे। तो फिर इसलिए मैंने स्टार्ट किया। एंड अनदर पर्पस वाज, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव माय ओन स्टार्टअप। ओके। और मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड हैज नथिंग टू डू विद बिजनेस। ओके। तो ये तो पता था कि बहुत बड़ा रिस्क है, सिंस आई एम स्टार्टिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड विदाउट एनी मेंटोर। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि जितना भी जॉब करूंगी, I'd save up a major portion of it and then invest it in my business. So even if it fails, I'll have no regrets कि मैंने किसी, मतलब I have not wasted my parents' money or someone else's money. या। Whatever it is, it would be my own investment, and I'm pretty happy with whatever I did and whatever I, even if I lost money, I'm happy with it. So how was your startup journey? And again, I would like to, highlight this particularly. So JB is known for a CEO factory. And Yeah. if it is known for a CEO factory, because students over here have that entrepreneurial instincts, I feel. So I think that completely matches with your MSc Finance ka interview, etc. Mm. And again, you were a BCom graduate, then you worked for a couple of years in 16 months, I think, for Yeah. Amazon. And then Yes. you started your own startup. सो पूरा आपने एमबीए के बाद वाला एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ पहले ही कर लिया। लोग नॉर्मली एमबीए के बाद में स्टार्टअप करते हैं। सो Mm. गुड। सो हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस हैपन फॉर यू? एंड व्हेन वाज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि ठीक है, अभी मेरा स्टार्टअप हो गया है एक्सपीरियंस करके, आई शुड नाउ गो फॉर एन एमबीए। सो व्हाट वाज दैट ट्रांजिशन लुकिंग लाइक फॉर यू? सो मैंने amazon का जॉब कॉलेज के बाद कुछ महीने तक कंटिन्यू किया। बट आई रीच्ड अ पॉइंट कि आई रियलाइज्ड आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू ओवर हियर। मेरा या। जितना कुछ इम्प्रूव करके होना था, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, आई हैड इम्प्रूव्ड इट। और अंदर से लग रहा था कि अब और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर आई स्पेंट अ गुड 2-3 मंथ्स डूइंग मार्केट रिसर्च कि कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है। मुझे ये पता था कि एक्सपोर्ट्स का शुरू करना है, बट कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, इसमें मैंने 2-3 महीने लगाए। आई यूज टू गो टू फैक्ट्रीज एंड आई यूज टू मीट exporters and traders, and I would meet them as a student, and I'd ask them about their work, who are their potential customers, what is their supply chain, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे और डिसाइड करते कि कौन से प्राइस पे बेचना है। क्योंकि मैं ऐसे रैंडमली जाती तो कोई एंटरटेन नहीं करता, बट सिंस आई यस। वुड गो टू देम एज अ स्टूडेंट, दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू इंटरेक्ट कि अच्छा कोई स्टूडेंट आया है समझने के लिए। सो वो नाइस। थोड़ा 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 झूठ बोल के थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालती थी उनसे। और ऐसे मार्केट रिसर्च करी पूरी, और ऑक्शंस वगैरह भी होते हैं जाके का, वो सब एक्सपीरियंस किया कि कैसे क्वालिटी जानना है। ये सब तो बहुत डिटेल में मार्केट रिसर्च किया, और देन आई स्टार्टेड। एंड देन व्हेन डिड यू डिसाइड कि ठीक है, अभी ये स्टार्टअप मे बी इट्स नॉट वर्किंग, एंड देन यू शुड डू समथिंग एल्स? एंड व्हाई ओनली एमबीए, व्हाई नॉट अनदर स्टार्टअप? ऐसा क्यों नहीं आपने सोचा? Okay, so since I mentioned that I was working on a limited finance, limited capital, I realized कि अरे finance में इतना कुछ नहीं आता marketing wise, and while approaching customers or the suppliers, I was pretty comfortable. But when managing finance, I was like, okay, there are certain skills that I'm lacking and I should work on it. या। So I thought कि ठीक है, business तो करना है आगे जाके, या फिर सीखना तो है, या तो एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ ना कुछ करना है, बिकॉज आई हैव दैट क्रिएटिव माइंड। बट इफ यू हैव टू बी दैट पर्सन, यू शुड ऑल्सो हैव अ स्ट्रांग नॉलेज अबाउट फाइनेंस। या। तो तब तो पता चला कि भाई अब फाइनेंस में करना ही है मार्केटिंग। आई
take up another course or do something else to learn marketing, or I'd most probably try to learn practically Yeah. rather than theoretically. But finance, so I knew that I wanted to learn it from, you know, credible people कि अच्छा ठीक है इनसे सीखा है इनसे समझा है, and I'm good Yes. at finance to have that confidence. So that's a really good decision because even in JBIMS, a lot of professors उनके खुद के कंपनीज वो रन करते हैं एंड उसके बाद में वो JBIMS में आके पढ़ाते हैं. सो यू वुड हैव ऑलरेडी नो गेट टू नो अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स एंड आगे जाके और भी प्रोफेसर्स मिलेंगे लाइक हु आर प्रेसिडेंट्स CEOs of particular big companies like JSW, बड़े बड़े डाबर etc. एंड फिर वो वहाँ पे जॉब भी करते हैं एंड देन वो नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं JBIMS. सो वेरी गुड डिसीजन अगेन दैट यू थॉट कि आपको ये करना है. सो नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट योर एंट्रेंस एग्जाम स्ट्रैटेजी. आपने कौन से एग्जाम्स दिए एंड देन आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा था एंड आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे स्ट्रैटेजाइज किया. Okay, so मेरा ड्रीम कॉलेज JBIMS था because JBIMS is known as CEO factory. So दिमाग में था कि CEO factory में ही सीखना है कुछ भी करके. But just to be on a safer side, I gave all the entrance exams that were there. CAT दिया, SNAP दिया, XAT दिया. NMIMS का जो एंड मैट एग्जाम. entrance NMAT, okay, हाँ NMAT वो भी दिया. I gave everything that was there. But my main goal was CET obviously. तो फिर जैन 7 तक शायद जैट का लास्ट एग्जाम था. उसके बाद मैंने एक वीक का ऑफ लिया. आई वॉज टू ड्रेन्ड आफ्टर ऑल दीज एग्जाम्स क्योंकि नवंबर से कैट स्टार्ट हुआ, उसके बाद एग्जाम्स चल ही रहा था. तो मैंने सोचा कि एक हफ्ता थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड देन आई गेट बैक टू प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, क्योंकि इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते वक्त माई बेसिक्स वर क्लियर. तो फिर मैंने जब सीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, I completed the portion within a couple of weeks, and then I had a strategy to give a mock on after every 4 days, and then work ओके. accordingly. ओके. जो भी वीक पॉइंट्स है, स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, उसे एनालाइज करके उस पर वर्क करके वापस मॉक देना, ये स्ट्रैटेजी था मेरा. बट आई हैड सम इश्यूज, देयर वर सम पर्सनल इश्यूज, फैमिली इश्यूज, जिसकी वजह से 10-12 दिन मेरा प्रिपरेशन का ऐसे ही चला गया. And ओके. after losing those 10-12 days, I was panicked because every hour is accountable. राइट. और मैंने इस क्रूशियल टाइम पे मैंने 10-12 दिन ऐसे, मतलब मेरे 10-12 दिन चले गए थे. तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की. आई रियलाइज कि मेरा मेन इशू कंसेप्ट्स नहीं है, मेरा मेन इशू स्पीड है. राइट. टू इम्प्रूव दैट स्पीड, आई डिसाइडेड टू गिव अ मॉक एवरी डे, क्योंकि मैं फुल टाइम स्टूडेंट थी तब. तो फिर आई हैड द होल डे. सो although it was not advised by a lot of mentors And कि when रोज मॉक when नहीं was देना है. this time when you started deciding कि मुझे अब से हर दिन एक मॉक देना चाहिए, like दिसंबर, जनवरी, नवंबर, कौन सा मंथ में आपने डिसाइड किया. नहीं, सीईटी का प्रिपरेशन तो जैन से स्टार्ट हुआ, और मेरा फेब का फर्स्ट 10 days फॉर सम रीजंस आई कुड नॉट स्टडी. हाँ. एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मार्च में ही एग्जाम है, तो हाँ. फिर रोज अब से मॉक देना है और So जल्दी this जल्दी is इम्प्रूव this करना is है. very similar to my story. My first attempt. In my first attempt also मैंने 4th of February को एनमैट का इंटरव्यू देने के बाद में CET एग्जाम के लिए 30 days थे. तो मैंने ओके. भी हर दिन एक मॉक देने का प्लान किया था. बट बट आई एंडेड अप गिविंग 2 मॉक्स पर डे बिकॉज मुझे लगा ओके. सब लोग एक मॉक तो देंगे ही, मैं भी एक मॉक दूंगा, कोई और भी एक मॉक देगा. बट मुझे JBMS जाना है तो मैं एक्स्ट्रा क्या करूंगा. तो मैंने सोचा मैं 2 मॉक दूंगा. एंड अगेन it is not advisable to give 1 mock every day. But since you were like in your later stages of preparation, आप फरवरी में हो और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको स्पीड इम्प्रूव करना है. सो अगेन यू कंटिन्यू, यू डिसाइडेड कि आपको 1 mock एवरी डे देना है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ डिड यू फील अबाउट इट, लाइक डिड यू थिंक दैट इट रियली वर्कड आउट फॉर यू, व्हाट वाज योर परसेंटाइल एंड what would you have done differently if now you are in JBMS, you don't have that stress कि CET एग्जाम का पढ़ाई करना है. अगर अभी आप वापस प्रिपेयर करते तो आप क्या चेंज करते. ओके. हाँ, शायद मुझे थोड़ा और जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना था. मे बी अगर मैं कोई एक एग्जाम, मतलब कोई दूसरा एग्जाम नहीं देती और इस पे पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट करती, तो बेटर रहता इन प्लानिंग माई मार्क्स.
और स्पेशली जो वो 10-12 दिन मैंने मिस किया, हाँ, तो अगर वो नहीं होता तो आई वुड हैव स्टिक टू माय ओन स्केड्यूल, जो भी मैंने डिसाइड किया था कि हर 3 दिन में या हर 4 दिन में मॉक देना है, वो उससे मतलब वही कंटिन्यू करती मैं। बट मैंने ये जब स्टार्ट किया तब मेरा स्पीड तो इम्प्रूव होने लगा था थोड़ा थोड़ा, ओके, और एक्यूरेसी वाइज भी बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। सो अगर मैं वापस प्रिपेयर करती तो शायद मैं हर रोज तो एक मॉक नहीं देती, थोड़ा ज्यादा टाइम रखती बीच में टू ऑल्सो इम्प्रूव माई एक्यूरेसी। और मेरा परसेंटाइल 99.11 था। तो ओके, जब ये परसेंटाइल आया तब तो पता चला कि इस पे तो JPIMS MMS तो नहीं होगा। हाँ, तो तभी मैंने डिसाइड किया ठीक है, MMS नहीं होगा, मुझे वैसे भी MBA फाइनेंस भी करना था, तो लेट्स डू MSc इन फाइनेंस। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल होगा, ज्यादा इन डेप्थ होगा, बट JPIMS में होगा और फाइनेंस होगा। सो आई वाज लाइक ठीक है, अभी से प्रिपेयर करना है। सो जिस दिन मुझे परसेंटाइल पता चला था मेरा, आई गेस उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फॉर MSc फाइनेंस। मुझे पता नहीं था ओके. शॉर्टलिस्ट होगी नहीं होगी, इंटरव्यू कैसे होगा क्या होगा, बट आई डिसाइडेड कि चलो स्टार्ट कर ही देते हैं, जो भी होगा होगा। सो वाई आई पर्टिकुलरली आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जब बात कर रहे इट्स अक्टूबर, सो अभी अराउंड 30 डेज है फॉर कैट एग्जामिनेशन. बहुत हम्म। सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्जैक्टली लाइक यू ड्रीम है JBIMS जाना, बट वो कैट एग्जाम भी दे रहे, स्नैप भी दे रहे, एनमैट भी दे रहे, जैड भी दे रहे, सब दे रहे. So, if you were like 1 year back with this experience which you had, आपने जनवरी में स्टार्ट किया एंड देन एक्चुअल में आपने फिर फरवरी के मिड से 1 mark per day देना स्टार्ट करके एक्चुअल में आपने तभी आपका एफर्ट डाला. बट इफ यू वर निधि इन दिस करंट अक्टूबर वाला फेज 1 month बिफोर कैट, तो आप क्या डिफरेंटली करते, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा प्लान बता सकते हो कि आप November 1st से अगर प्रिपेयर करते बाय द एंड ऑफ मार्च फॉर CET एग्जामिनेशन, तो आप क्या ट्वीक करते इस बार फॉर, मतलब दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर द एस्पिरेंट्स बिकॉज सी यू आर समवन हु ऑलरेडी क्रैक JBIMS, आपने कर लिया. बट अगर आप खुद के हिसाब से ही अच्छा प्लान बनाते फॉर योर सेल्फ एंड क्या करते तो आपको और बेटर, आपको क्या लगता है कि हाउ कुड हैव यू इम्प्रूव्ड फर्दर विच विल आल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स. ओके, सो एट द बैक ऑफ योर माइंड you know कि which colleges you are aiming at, ठीक है? या, So maybe from through CAT I might be aiming some particular colleges. तो उनके लिए आई वुड रियली वर्क ऑन कैट फर्स्ट। बट जैसे कि एनमैट एग्जाम था, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि एनमैट के थ्रू आई माइट नॉट वांट टू गो थ्रू टू NMIMS फॉर पर्सनल रीजंस, नॉट नॉट दैट आई हेट दैट कॉलेज, बट कुछ कॉलेजेस के बारे में पता होता है कि यहाँ तो जाना है, और कुछ कॉलेजेस के बारे में पता होता है कि यहाँ में भी नहीं जाना है। राइट, सो accordingly aim on those particular exams related to your specific college। और फिर जो तुम्हारा मेन ड्रीम कॉलेज है, ऑब्वियसली सिंस दे माइट बी वाचिंग दिस वीडियो, इट्स मोस्ट प्रोबेबली JBIMS। या, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करो, या फिर थोड़ा ज्यादा पहले से स्टार्ट करो पढ़ाई करना, क्योंकि लास्ट में मेरा बहुत ऐसे स्नैप का सब कुछ करना है या फिर जैट का भी सब कुछ करना है, तो मैंने बहुत सारा, मेरा फोकस डाइवर्सिफाई हो गया था कि हाँ ये भी करो वो भी करो ये भी करो। तो थोड़ा फोकस्ड रहोगे तो बेटर कर पाओगे इन माय ओपिनियन। right. Really good answer because even when I was preparing for these examinations, मेरा भी ऐसे ही हुआ. First attempt I could not get into JBIMS. I did not get that score. But second attempt में तो I was 100% sure कि मुझे जाना तो इसी कॉलेज में है. तो मैं 10 अलग एग्जाम देके क्या करूँगा. But again, I gave my 100% for CAT as well. उसके बाद में यू हैव इनफ टाइम टू डिसाइड कि अभी हम्म। कौन सा एग्जाम प्रायोरिटाइज करना है. एंड अगेन एज यू मेंशन सिमिलरली आई आल्सो हैड कन्वर्टेड NMIMS, बट मुझे जाना नहीं था, जाना तो JBIMS ही था. सो देन आई strategized माई प्रिपरेशन दैट वे. बट या, प्रिपेयरिंग अर्ली डज हेल्प. वुड यू ऑल्सो एग्री टू दैट? Yes, obviously it does, क्योंकि you get a lot of time for practicing mocks and analyzing mocks and increasing your speed, क्योंकि CET का portion wise questions are not really that tough।
या मेन की इज दैट यू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी एंड वर्क ऑन योर स्पीड, और ये या सारा बस प्रैक्टिस से ही होगा. इट्स नॉट लाइक कि यू कैन डू इट ओवरनाइट. यू या हैव टू प्रैक्टिस लॉट. सो सो आपका कोई ऐसा पर्टिकुलरली वीक एरिया था क्या ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? लाइक बीकॉम स्टूडेंट्स जनरली बोलते हैं कि क्वांट्स नहीं आता है, हमको सिर्फ वर्बल आता है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट एंड हाउ डिड यू टैकल योर वीक एरियाज? ओके, एग्रीइंग टू दैट. इवन मेरा कॉन्स भी कुछ इतना खास नहीं था. सिंस कॉन्स मेरा वीक था, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम डाला कॉन्स में, क्योंकि कोई भी कोई भी चैप्टर यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इट, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन आया चैप्टर से और आपने मिस कर दिया उसको प्रिपरेशन, तो आपको बाद में जाके रिग्रेट होगा कि अरे यार ये थोड़ा सा पढ़ लेता, एक फॉर्मूला कर लेता, तो शायद या एक मार्क और आ जाता और बेटर होता मेरे लिए. या तो आई मेड श्योर कि हर चैप्टर का थोड़ा सा ही सही, बेसिक से सही करना ही है. और ओके फिर मेरा पूरा डेस्क के ऊपर ऐसे पूरा फॉर्मूलाज का और स्क्वायर्स और क्यूब्स का पूरा सब कुछ चार्ट्स लगाया था. आई यूज्ड टू रिवाइज इट डेली, हर रोज देखती थी, पढ़ती थी वो सब. तो बेसिक्स ऐसे ऐसे करके कॉन्स बेटर किया. ओके और जो मेरा मेरा लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग था, तो उस पे भी मैं अच्छा खासा प्रैक्टिस करती थी, ताकि ऐसा ना हो कि कॉन्स पे पूरा फोकस कर दिया और इस पे थोड़ा ब्लैक डाउन कर दिया, और जो अच्छा आता था उस पे मिस आउट कर दूं. तो दोनों पे इक्वली फोकस किया. और about verbal, what I had done is I had installed few applications on my phone for vocabulary and for grammar. या तो बीच बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के अलावा आई यूज्ड टू जस्ट गो एंड गिव 5 मिनट्स का टेस्ट. और फिर वोकेबलरी का कुछ ऐसे गेम्स वेम्स खेल लेती थी. तो हाँ ऐसे आई यूज्ड टू वर्क ऑन वर्बल. ओके गॉट इट परफेक्ट. सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. सो जो भी स्टूडेंट अभी ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, so what are the key things which are required for preparation, right? One is कि study material होना चाहिए. दूसरा है कि आपके पास mocks होने चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, विल यू एग्री कि आपको कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस एंड मोटिवेशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज योर स्टडी मटेरियल? बिकॉज अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, तो स्टडी मटेरियल और मॉक्स होने के बाद भी आप मे बी वो यूज ना करो. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज mentorship particularly according to you in the course of your preparation, and how does it help to handle stress during the preparation? ओके, सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मेंटोरशिप. तो I had joined DTP, and we used to have one session every week where a mentor would guide us and solve our doubts and whatever questions we had. तो वो हेल्प करता था प्लान करने में अगला वीक कैसे होगा. Yeah, तो फिर जब गाइडेंस मिलती थी तब एक तो होता था कि ओके, सामने वाला बंदा ऑलरेडी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्रैक कर चुका है, सो ही नोज yeah, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. yeah, ओके, सो थोड़ा एक सेंस ऑफ ट्रस्ट तो ऑलरेडी होता है कि सामने वाला इंसान नॉलेजेबल तो है, ही yeah, हैज डन इट, एंड यू देयर इज समथिंग दैट यू कैन गेन फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड हिज लर्निंग्स. yeah, तो वो हेल्प करता है. और फिर कोई मेंटोर करने के लिए होता है, कोई गाइड करने के लिए होता है, तो थोड़ा सा एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर नॉट रिलैक्स्ड एज पर, बट एक विश्वास होता है कि ठीक है, वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, या फिर कोई confidence. uh, हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट. Yeah, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये भी समझ आता है कि वेर एम आई वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि कोई बताता है कि ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे कर. तो वो शॉर्टकट्स एंड और ये सब टाइम बचाने में हेल्प करता है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे हाईलाइट करना है कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू आर स्पेंडिंग होल डे स्टडिंग, या फिर तुम्हारा जॉब जो कुछ भी है, जॉब और पढ़ाई दोनों कर रहे हो, बट थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालो. मे बी वर्कआउट, गो टू जिम, कुछ भी करो. आई यूज टू वर्क आउट और गो टू जिम फॉर हाफ आवर और 45 मिनट्स और 1 आवर. तो उस 1 घंटे की वजह से मेरा बाकी का जो दिन था, या फिर मतलब माइंड सेट हो जाता था कि थोड़ा फ्रेश हो गई है, तो और अच्छे से प्रिपेयर कर पाती थी और अच्छे से फोकस कर पाती थी पढ़ाई पे. सो yeah, इवन दैट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, बट ऐसे नहीं कि 2-3 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दो. थोड़ा बहुत correct. टाइम तो चलता है. सो Yeah, and I think working out and giving yourself that gratitude कि हाँ भाई तुम पूरा टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो you should appreciate yourself also, your efforts as well. And I think this really helps to reduce the stress.
राइट? हम Yes, लोग right. पूरे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ अ प्रिपरेशन वी बीट आवर सेल्फ सेइंग कि मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे ज़्यादा मार्क्स Hmm. नहीं आ रहे. सो वी कॉन्स्टेंटली ट्राई टू हेट आवर सेल्फ कि मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, एज यू रियली राइटली हाईलाइटेड. एंड इवन आई in all of my mentorship sessions I urge students कि यार एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आप खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कि आपने इतना एफर्ट्स डाला है, एंड देन फिर आप आगे का प्लान बनाओ. इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू आस्क अ मेंटर, यू नीड टू आस्क अ गाइड कि यार Hmm. नहीं चल रहा है कुछ ठीक, कुछ तो ट्वीक करना पड़ेगा, एंड देन दैट्स Right. हाउ इट हेल्प्स. सो रियली गुड जर्नी, निधि. आई थिंक टू एंड इट, what would be your few guidance words for the future aspirants if you were to guide them? आप उनको क्या सजेस्ट करोगे फॉर पीपल हु आर करंटली परस्यूइंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फेज? व्हाट वुड यू गाइड देम? Okay. A small suggestion for everyone who is watching. जब तुम एग्जाम देने बैठोगे, be it CAT, CET, जो भी होगा, you'll see that you have a good 15-20 minutes before the actual exam starts. जब तुम्हारा मतलब रजिस्ट्रेशन और हो गया, तुम अंदर जाके बैठे हो अपनी सीट पे, instead of panicking out, just try to meditate for those 15-20 minutes, जो मैंने भी किया सीईटी देने से पहले, मतलब सीईटी एग्जाम देने से पहले. मैं जब पूरा सेटल थी, I just closed my eyes and I started thinking about when I started. कितना एफर्ट्स डाला है, कितना मतलब देर देर तक बैठ के पढ़ाई की है, और फिर कितना कुछ, मतलब कितना बड़ा सपना है टू बी इन JBIMS. मैंने वो विजुअलाइज किया कि I'll be so happy when I step into JBIMS as a student. तो ये सब विजुअलाइज किया, उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश की. तो वो एग्जाम के पहले आई थिंक दैट रियली हेल्प अ लॉट, क्योंकि पूरा एग्जाम आई वाज वेरी काम एंड आई वाज वेरी फोकस्ड थ्रू आउट इट बिकॉज ऑफ दोज 15-20 minutes right before the exam. So या, maybe even you can try. amazing, amazing. So, obviously, that is also called manifestation. So, that really helps. So, thank you so much, Nidhi, for joining us today and giving your, information about your preparation and also motivating a lot of students who are watching this video right now. So, thanks a lot for that. I think that is it for this video. We will be also having a lot of more students from GBIMS. I hope Nidhi also joins us as a mentor soon and can guide a lot of our students. So thank you so much. Thank you for joining. You're welcome.